Good afternoon, class. So today we will start our new chapter, chapter 6, that is tissues. So before starting, we will see the levels of organization, how the total complete body is formed. Okay, in the last chapter we have studied about the cells. Okay, so cells, the group of cells makes the tissues, and the group of tissues make an organ, and the organ is responsible for any system. It makes the system. Okay, and any system makes the body. As you can see in this diagram, there is a specialized muscle cell which is the specialized for a muscle tissue, which makes the muscle tissue. Okay, and these group of muscle tissues makes an organ which is also known as heart, and the heart is responsible for pumping of blood, which is helpful in the circulatory system, and this circulatory system forms the body. Okay, so this is the levels of organization. The cell level we have studied in the previous chapter. The tissue level we will study in this chapter. Okay, now we will start the tissues. Tissues are the group of cells that are specialized to perform a particular function. Okay, these are mainly of two types: plant tissues and animal tissues. First we will study about the plant tissues. As we all know that plants do not move, और we can say that they are stationary. Okay, plants अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते. ठीक है, most of the tissues they have are supportive. जो इनके ज़्यादा से ज़्यादा tissues plants में पाए जाते हैं, they are supportive, which provides them the mechanical strength और the structural strength, जो उनको किसी एक जगह में खड़े रहने में उनको help करते हैं और growth में इनकी help करते हैं. Okay, most of these tissues are dead as they can provide the mechanical strength than the live ones. कहते हैं बहुत सारे टिश्यूज़ प्लांट में जो होते हैं वो डेड होते हैं, और वो डेड सेल्स आपके क्या करते हैं, डेड टिश्यूज़ आपके उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ओके, एंड द लाइव वंस हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड. ओके, देन सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट लाइफ. दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन द सर्टन रीजन्स. तो कुछ आपके टिश्यूज़ है जो कीप ऑन डिवाइडिंग, आपके जैसे जैसे प्लांट लाइफ आगे बढ़ती रहती है वो डिवाइड होते रहते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़. द प्लांट टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड permanent tissues, as you can see also in the diagram. Further, the meristematic tissue is divided into three parts: apical tissue, lateral tissue and intercalary tissue. And the permanent tissues are divided into simpler and complex tissues. The simpler is further divided into four types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and protective tissues. And the complex is further divided into two: phloem and xylem. Now we will first study about the meristematic tissues. Meristematic tissues are responsible for the growth in plants. Okay, so the cells in these tissues can divide and form these new cells. Okay, the meristematic tissues are mainly responsible for growth. Okay, it is divided into three types: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Okay, now we will see in the diagram which is in the next slide, where the all three tissues of meristematic tissues are present in the plant. The first is the apical meristem. It is present at the growing tip of the stem and roots, which is helpful for increasing the length of the plant. ठीक है, apical meristem को अगर हम डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द टॉप, जो कि आपका किस लिए हेल्प करता है, शूट और रूट के टिप पे होता है, जो कि उसको बढ़ने में वो हेल्प करता है. ठीक है. द सेकेंड पार्ट इज लेटरल मेरिस्टेम, which is also known as cambium. It is present beneath the bark. It is responsible for growth in the girth of trunk. अब देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, beneath the bark. bark क्या होता है आपका आउटर कवरिंग. ये लास्ट देखिए आपका लेटरल मेरिस्टेम, इसमें जो आउटर कवरिंग होती है इसके बिल्कुल नीचे आपका लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू आपका प्रेजेंट है. ओके, then the third is intercalary meristem. It is present at the internodes or the base of the leaves and increases the length between the nodes. कहाँ पे प्रेजेंट है ये, इंटरनोड्स. इंटरनोड्स क्या होते हैं, ये देखिए जहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको कहाँ दिखाया है, जहाँ से न्यू ब्रांचेस आपकी स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो ये आपका इंटरनोड वाला एरिया होता है, तो यहाँ पर आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपके प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द परमानेंट टिश्यूज. The cells of meristematic tissue change their shape and size
to get specialized in performing their functions in plant's body. This is called as differentiation. Once the cells of meristematic tissue divide to a certain extent, they become specialized for a particular function. These permanent tissue are mainly of two types, simpler tissues and complex tissues. The simpler tissues, these are made up of same type of cells. ध्यान रखना, simpler tissues जो आपके होते हैं ये आपके same type of cells के लिए same type of cells से बने हुए होते हैं. ओके, these are again of 4 types. ये आपके 4 टाइप के हैं. पेरेनकाइमा सिंपल टिश्यूज, ठीक है, जो कि आपके क्या हैं, सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा टिश्यूज आर लाइव. ठीक है, ये लाइव हैं, ये डेड सेल्स नहीं हैं. दे आर ओवल शेप के होते हैं, इलोंगेटेड होता है, थोड़े लंबे से होते हैं, एंड लूजली पैक्ड होते हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस, जो इनके सेल्स के बीच में स्पेस इनके प्रेजेंट होता है. ओके, फॉर्मिंग द बेसिक पैकिंग ऑफ टिश्यूज एंड आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. पूरे प्लांट बॉडी में ये हमारा पाया जाता है. देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेरेनकाइमा? दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. ओके, एंड दे स्टोर द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन दी वैक्यूल्स. अब इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपके ये पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं किसको, प्लांट बॉडी को. ठीक है, ताकि किसी भी जगह में हमारा प्लांट इजीली वहाँ पर ग्रो कर सके. और दे प्रोवाइड द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन द वैक्यूल्स. वैक्यूल्स इज द एम्प्टी स्पेस विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स सेल्स. ओके, देन वी हैव क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा आपका क्या कहता है, पेरेनकाइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा. ये आपका किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर एंड sunlight. Okay, then we have parenchyma. Parenchyma, in aquatic plants, cells of parenchyma have large air cavities to give the buoyancy to the plant. It is called an parenchyma. Mainly it is present in the aquatic plants. जो कि क्या होता है aquatic plants में, उनमें large cavities, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप होता है जिसकी वजह से उसको प्लांट को वो buoyancy प्रोवाइड करते हैं. Okay, then we have collenchyma simple tissues. Collenchyma simple tissues are live. They are oval and elongated and tightly packed. अगर हम पिछले में देखेंगे तो वो लूजली पैक्ड था, ये काफ़ी टाइटली पैक्ड है. इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस बिल्कुल भी नहीं है. ओके, दे आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम. कहाँ पे पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे. ओके, एंड द फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज आर दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट and they also provide the flexibility to the plants so that they can bend without the breaking. कहता है कि प्लांट्स को आपने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली नहीं टूटते, है ना. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके वजह से होती है, कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू की वजह से होती है. ओके, देन वी हैव स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यूज. द सेल्स ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा आर डेड टिश्यूज, सो दे आर नैरो इलोंगेटेड, और जो उनका सेल वॉल बना होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिग्निन. ठीक है, लिग्निन क्या करता है, प्लांट के किसी भी पार्ट को हार्ड कर देता है. ठीक है, और आप इसकी क्या करता है, स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. आपने कोकोनट हस्क का एग्जांपल देखा होगा. कोकोनट एक आपका हार्ड सीड होता है, उसके किनारे आपने देखा होगा उसका हस्क होता है ना, जिसको आप छीलते हो. तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड कवरिंग किसकी वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू द लिग्निन दैट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट्स. ठीक है, द फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, दे हेल्प्स टू मेक द प्लांट पार्ट्स हार्ड एंड स्टिफ. ठीक है, उसके प्लांट के पार्ट्स को हार्ड और स्टिफ बनाता है एंड प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. देन वी हैव द प्रोटेक्टिव टिश्यूज. दे प्रोटेक्ट द प्लांट बाय फॉर्मिंग एन आउटर लेयर. जो बाहर की कवरिंग होती है उसको वो बनाता है. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एपिडर्मिस simple tissues and cork simple tissues. Then further, the epidermis simple tissues, it covers the entire body of plant and they protect the plant from the injury, germs and water loss. Injury से बचाता है किसी भी तरीके से, germs से बचाता है और water loss होने से बचाता है. Then the cells of epidermal tissues forms a continuous layer without the intercellular spaces. जो आपके cells present होते हैं इसमें वो without intercellular spaces होते हैं, कोई भी तरीके का space उसमें नहीं होता और पूरे continuous layer में आपको cells देखने को मिलते हैं. Okay, ये टिश्यूज देखने को मिलते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज. ओके, देन देयर आर स्टोमेटा. स्टोमेटा आपको पता है क्या है, दीज आर द ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, जो किस लिए हेल्प करते हैं, दीज आर हेल्पफुल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ओके, देन इन डेजर्ट प्लांट्स
एपिडर्मिस एंड क्यूटिन आर थिकर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होते हैं हमारे पास, एपिडर्मिस और क्यूटिन होता है जो काफ़ी थिकर होता है साइज में, एंड इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस होने से बचाता है। देन वी हैव सेकंड द कॉर्क सिंपलर टिश्यूज। These types of tissues consist of dead cells, इसमें हमारे dead cells पाए जाते हैं with no intercellular species, किसी भी तरीके का स्पेस इसमें नहीं होता, and they form the outer layer of old trunks। आपने काफ़ी पुराने जो काफ़ी साल हो चुके हैं पेड़ वो देखे होंगे, उनकी बाहर की कवरिंग अगर आपने देखी होगी तो काफ़ी हार्ड होती है ना, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ कॉर्क सिंपल टिश्यूज, ठीक है। कॉर्क सेल्स हैव अ केमिकल कॉल्ड एज सुब्रीन दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। क्या करता है, उसमें जो सुब्रीन प्रेजेंट होता है वो उसको क्या करता है, गैसेज और वाटर को अंदर पास नहीं होने देता है ना, अपने में से भी और बाहर से भी पास होने नहीं देता। कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस, ठीक है। कॉर्क बीन लाइट इन वेट इज यूज फॉर मेकिंग सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक बॉटल स्टॉपर्स एंड शटलकॉक। आपने देखा होगा कि बॉटल स्टॉपर्स हम बनाते हैं लकड़ी के, है ना, वो कॉर्क के बनते हैं, और शटलकॉक देखी होगी जो बैडमिंटन में यूज़ होती है, तो वो कॉर्क सिंपल टिश्यू से ही बनी होती है। देन सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपलर में हमने क्या देखा था, सेम टाइप ऑफ सेल्स काम कर रहे थे, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है लेकिन एक टास्क को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन टास्क वो कर रहे हैं। अब जैसे अब दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स में इन्होंने बांटा है इसको, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कहाँ से लेके जाता है, रूट्स से प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में, जैसे ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है, इन सब चीज़ों तक, ब्रांचेस, लीव्स यहाँ तक, और स्टेम यहाँ तक आपके वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को आपका जाइलम पहुँचाता है, ठीक है। Then it is composed of 4 types of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem sclerenchyma. As you can see in the diagram that is in the right hand side, the tracheids are long, elongated cells with tapered ending. पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे ट्रैकिड के, तो जो उसकी एंडिंग है वो टेपर्ड है, थोड़ी सी नुकीली सी है ना, एंड इट कंसिस्ट ऑफ पिट्स, ठीक है, छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो किस लिए हेल्प करते हैं, विच आर हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। एंड दीज ट्रैकिड्स आर डेड सेल्स, ओके। देन द सेकंड नंबर इज वेसल। वेसल इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे, वेसल्स आर ऑल्सो डेड एंड हैव लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है वो काफी थिक होता है, अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल इज एब्सेंट, ओके। देन द थर्ड इज पेरेनकाइमास। पेरेनकाइमास आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स हैं, ऊपर के जो दो देखे थे हमने वो डेड सेल्स थे, ठीक है। दे स्टोर द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ओके। द स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, ये क्या करते हैं, दीज आर ऑल्सो डेड सेल्स एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, ओके। देन वी हैव द सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज फ्लोएम। इट इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। उसमें हमने जाइलम का देखा था, रूट्स से दूसरे प्लांट पार्ट्स में वाटर को लेके जाता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को लेके जाता है, कहाँ से, लीव्स से दूसरे प्लांट पार्ट्स में, ओके। दीज आर ऑल्सो ऑफ 4 टाइप्स: सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, ये सारे इसके 4 टाइप्स हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, sieve plate is in the topmost, which consists of small gaps between them. Then the second part is sieve tube, ठीक है, which is just beneath the sieve plate. Then we have the phloem parenchyma, which is the outermost layer below the epidermis. Then we have the companion cells. Now first we will see the sieve cells. These are elongated and have thin cell wall. They have cytoplasm but no nucleus and other organelles, ठीक है। sieve cells में हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, only cytoplasm is present but there is no nucleus and the other organelles that are present in the cells, ठीक है, and these are responsible for transportation of food and nutrients, okay. Then the second we have the companion cells. companion cells में हमारे पास साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और सारे ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं, ओके।
अदर ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं जैसे सेल्स के, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे वैक्यूल्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज है दैट आर प्रेजेंट इन सेल्स. सो दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग. तो जो सीव सेल्स को जिंदा रहने के लिए हमारे ये टास्क प्रोवाइड करते हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है. देन फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स द फूड. And the fourth is phloem fibers. These are helpful for mechanical support to the plant. They provide the mechanical support to the plant. Okay. Lastly, these are some of the questions that you have to perform in your notebook. ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस को करेंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, ताकि मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है. एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द एनिमल टिश्यूज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.